हाय, दिस इज उमेश सेंड्रा और मैं अपने ही सेंटर के सेंड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के छात्रों की आज आपको प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चा अपने आप को तैयार करता है आने वाले हर्डल्स के लिए, परेशानियों के लिए, कठिनाइयों के लिए कि उनको कैसे पास आउट किया जाए। बच्चों के अंदर की जो उनके अंदर की क्वालिटी है उसको निखारने के लिए प्रेजेंटेशन विशेष रोल रखती हैं और आज इन बच्चों की पहली प्रेजेंटेशन है, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कमियां इस प्रेजेंटेशन में रहेंगी, लेकिन फिर भी शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होती है। तो इस प्रेजेंटेशन का आनंद लीजिएगा। बच्चों की पहली कंप्यूटर क्लास की प्रेजेंटेशन अभी आपके सामने शुरू होने जा रही है। थैंक यू। Good morning everyone, myself Khyati Garg. So the topic we are going to discuss today is about input and output devices. So before learning about them, it is very important to know their requirement in computer system. So as we know, computer has become a basic need nowadays. So these devices help us to communicate with the computer because a computer will be of no use unless it is able to communicate with the outside world. So in simple languages, we can say that input devices helps to bring information in the computer and output device helps to bring information out of the computer. So one by one we will learn about them. So first we will learn about input device. So our input device accepts data from the user and then convert into computer understandable language and supplies this to the computer system for further processing. So its examples are keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone, etc. And output devices. Output devices accept results from the CPU in the form of machine language and then they convert that machine language into human readable language and then shows it to the user. So examples are monitor, printer, etc. So now we will learn about their examples. First, keyboard. So keyboard looks like a typewriter and it also operates like a typewriter. But as you have seen in a typewriter, there is one moving arm which strikes the paper. But a keyboard sends an electronic impulse to the computer system which shows a character on the screen. And a keyboard is having many keys including alphabet keys, number keys and some special symbols. Now, a keyboard stands a code that is known as ASCII, means American Standard Code for Information Interchange. That is an electronic signal that is detected by our electronic circuit known as keyboard encoder. Now we will learn about mouse. A mouse is an input device that is used to control the computer. It is connected to a computer through a cable. So, a mouse, when it is moved in a mouse pad, a cursor also moves on the screen. Now, what the cursor is? So, a cursor is a small symbol that is displayed on the monitor that is used to show you what the mouse is referring on the screen. So, a mouse is having two buttons, left mouse button and right mouse button, and in between there is a scroll wheel. So, a left mouse click is used to select something and right mouse click is used to generate menu. Now we will learn about scanner. So scanner is the input device which is used to enter information directly into the computer. It is like a Xerox machine. So it enters information, it converts any type of instruction into digital impulse, including digital photos or it converts it. So it converts any kind of information into digital impulses which can be manipulated by the computer. Now we will learn about joystick. So joystick is mainly used in game application. So its name is suggesting its definition. As its name implies, a stick that let you play game and make you feel joy. So we can say that a joystick is a stick that is used to play games and let you feel joy. Now we will learn about microphone. So a microphone is an input device that uses sound as the input. So it is connected to computer through jack port of the computer which lies in front of the computer system. So here we have learned about some of the input devices. Now we will learn about output devices.
As I have already told you, output devices accept result from the CPU, the machine language, and they give output to the user. But this output can be given in two forms, either in the hard copy or either in the soft copy. So on this basis, we have categorized output devices into two types. First one is hard copy output device and second one is soft copy output devices. Now what are these? So hard copy output devices are those devices which are used to give output to the users in a physical form, like in printer and in plotter. And soft copy hard output devices are those devices which give output in an electronic version, like monitor and print monitor, speakers, and projector. So first we will learn about monitor. So monitor is an output device which used to show the instructions to the user in a pictorial form. That's why we can say that it is a soft copy output device. And if we need the hard copy of that, we need to use a printer. Now we will learn about speaker. So a speaker is an output device that take sound as an output. So now that is mostly used in multimedia application to give sound or music as output. Now we will learn about projector. So a projector is used to flash light to an object. So it is mostly used in theater or sometimes in meeting applications. So now we will learn about hard copy output devices, that is printer. So printer is a hard copy output devices that print anything including document, spreadsheet, text, and it is measured in dpi, dot per inch. Now we will learn about plotter. So a plotter is a hard copy output device. So a plotter is used to enter information in a graphical way. So it is mostly used in engineering applications. In engineering application, it is used to print maps and print the architecture of infrastructure. So now, in today's class, we have learned about input and output devices and about their examples. Thank you. Hi guys, good morning all of you. I am Ayushi Chauhan. Today I am telling about computer language. तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि लैंग्वेज मतलब भाषा है क्या। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिस माध्यम से समझा सकता है या वो जिस भी तरीके का यूज करता है उसको हम वहाँ पे भाषा बोलेंगे। अब मान लो मैं आप मेरी बात को इजीली समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप सबको हिंदी आती है। तो इससे आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ लैंग्वेज, एक भाषा दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। वी कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसके बाद बात आती है इसकी टाइप। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हमारा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो मशीन लैंग्वेज है। मोस्टली हमारे घरों में सबके में इलेक्ट्रिक चीज होती है, जैसे कि मान लो फैन है, कूलर, फ्रिज, जो भी होते हैं। तो ये ओनली ये किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा को नहीं समझ सकता, ये ओनली ऑन और ऑफ को समझता है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ का मतलब क्या है? ये 0 और 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। ये जो भी कोई मशीन होती है ये ओनली ऑन और ऑफ को समझ सकती है, किसी भाषा को नहीं। तो ये मशीन लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ज्यादा टफ होती है। अब आप बात करने लगे कि अब जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज को कैसे समझता है? नहीं, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर की लैंग्वेज आज भी जो है वो बाइनरी डिजिट ही है। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी बात को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उस लैंग्वेज को हमारे में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए वो इजीली हम समझ पाते हैं उसको। ये है इसका विस्तार, यह है, ये मतलब कंप्यूटर के लिए ही जनरेट है। अब बात करते हैं, आई होप आप सबको ये समझ आए होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है इसका जो डिस्कवर्ड करी थी कैथरीन बूथ ने। ये है क्या चीज? कलेक्शन ऑफ म्नेमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इसके जो म्नेमोनिक्स है ये कुछ मिला। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप असेंबली लैंग्वेज। इसमें ऐसे कोड या कुछ सिंबल दिए गए हैं जिसको कोड के कुछ समूह बना दिए गए और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। कुछ निमोनिक्स थे ये, इनको मिला दिए तो उस कलेक्शन को हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात कर, वैसे ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसकी तुलना में थोड़ा सरल था
अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन के पास है, जिस पे हम रेगुलरली वर्क करते हैं, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इनको हम और भी नामों से कॉल सकते हैं, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज है, और इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज, और इसको 3GL शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको। इसकी फॉर्म होती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन हमारे ये भी आ सकता है कि मान लो एग्जाम में आ जाए कि ट्रिपल एल की फॉर्म क्या होती है, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। इसको इसी तरीके से HHL हाई लेवल लैंग्वेज, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ था, ये सेकंड जनरेशन में और ये थर्ड जनरेशन में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ये ओनली फाइनल डिजिट जो है ये 1 और 0 की को ही समझता है। अब मान लो यहाँ पे ये ऐड है, तो ADD ऐड है क्या, इसको कंप्यूटर समझ सकता है, ये थोड़ी समझ सकते हैं कि ये है क्या चीज। तो इसके लिए एक असेंबलर आया। असेंबलर क्या है? असेंबलर है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हम करने लगे, अगर ऐसे ही कोई हमारी लैंग्वेज को नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि इसके लिए भी तो कुछ सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा चाहिए जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे जिसको। तो मशीन लैंग्वेज में इसकी कन्वर्ट करेंगे। एक आया था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता था ये करता था हमारे लाइन बाय लाइन वर्क। और इसके बाद आया फिर कंपाइलर। कंपाइलर जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वैसे हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल एक कंपाइलर है। कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में। आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू लॉट। Guys and my respected ma'am, good morning to all of you. It's me, Namaste, at the front of you today. I'm here with history of computer. कंप्यूटर का विकास 19वीं शताब्दी में सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था और इसे डिफरेंशियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया, लेकिन आज के कंप्यूटर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अतः सन 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने फिर से कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो फर्स्ट जर्नल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज किया, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। भारत में यह सबसे पहला कंप्यूटर 1952 ईस्वी में आया था। भारत में कंप्यूटर की जो शुरुआत है वह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से ली गई थी। इसकी 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब से और कब तक चली थी? फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1955, और सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1974, फोर्थ जनरेशन 1974 टू 1989, फिफ्थ जनरेशन 1989। कंप्यूटर क्या है और ये कहाँ से है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से है। कंप्यूटर इसे गणना यंत्र भी कहा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हमें इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी माना जाता है। इसका जो क्षेत्र है वे केवल गणना यंत्र से तक नहीं सीमित है, अपितु आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक और इंटरनेट में इसका उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर 7 प्रकार का होता है। कंप्यूटर की जो टाइप्स है वो 7 प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर, फिफ्थ मिनी कंप्यूटर, 6 मेन फ्रेम कंप्यूटर, 7 सुपर कंप्यूटर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। Good morning to all of you. My name is Sandhya Chauhan. It's the front of you. Today my topic is computer memory. हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी is a storage device place that is used to store information. कंप्यूटर मेमोरी हमारी बहुत जगह है, वो स्थान है जिसमें हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, हम उसमें सेव कर सकते हैं। वो होती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स।
क्या होते हैं। मेमोरी के टाइप्स 2 होते हैं। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज आल्सो नाउन एज मेन मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी, इसे कहते हैं इट इज आल्सो नाउन एज एक्सिलरी मेमोरी। इट इज मेमोरी यूनिट्स विच इज प्रिपेयर्ड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो हमारा वर्क है वो है, उसे हम बैकअप भी कर सकते हैं। हमारा कोई भी टेक्स्ट है या हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है या हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, उसे हम बैकअप भी वो हमारी बैकअप भी हो सकती है। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का वर्क होता है। अब आते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स पर बात करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के जो पार्ट्स हैं हमारे, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लैपी डिस्क, सीडी और बहुत सारे आदि। थैंक यू। My name is Anupriya. Today's topic is Microsoft Office Word. सबसे पहले बात आती है कि Microsoft Office Word है क्या। Microsoft Office Word कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हम जब कोई टैक्स कार्य करते हैं तो उसमें MS वर्ड की जरूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सबसे पहले स्टार्ट होता कैसे है, ये 3 तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाके MS वर्ड ऑफिस को क्लिक करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करते हैं। दूसरा तरीका, उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं और उसमें सर्च या रन पर क्लिक करते हैं और उसमें विल वर्ड टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तीसरा तरीका, उसमें स्टार्ट बटन पर जाते हैं और क्लिक MS वर्ड आइकन पर क्लिक करते हैं। इस MS वर्ड में कई टैब्स होती हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। लास्ट तो करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टीचर्स। आई एम पूजा चौहान। मैं आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है हमारा ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का हमारा वो फिजिकल पार्ट्स है, सिस्टम और एवरीथिंग दैट वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर। उसे ही हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के एग्जाम्पल के लिए जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, एक्स्ट्रा। और उससे आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगी। सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच। सॉफ्टवेयर का हमारा वो भाग है जिसे हम टच नहीं कर सकते। AC और प्रोग्राम इज नो एंड सॉफ्टवेयर, जिसे हम देख यस अगेन मैं आपके सामने तो देखा आपने बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। हाँ, मिस्टेक तो बहुत सारी हैं, वो हम बच्चों के साथ डिस्कस भी करेंगे, और लेकिन फिर भी बच्चों ने कुछ करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। कैमरे के सामने बोलना, पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इन्हीं बच्चों के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ। टिल देन एंजॉय करें इस वीडियो को, बार बार देखें। नमस्कार।